ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا تو اس کی جانب سے اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے اور انسان کے اس دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی، اور یہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان کوئی بھی کام اس وقت کرتا ہے جب اس کے پیش نظر اس کے سامنے کوئی مقصد ہو۔ بغیر مقصد کے کوئی کام انسان کرتا نہیں ہے۔ مثلاً آپ بازار میں جائیں، مارکیٹ میں آپ سے کوئی پوچھے کہ مارکیٹ میں آپ کیوں آئے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ بھائی میں نوٹ بکس لینے کے لیے آیا ہوں، پینس لینے کے لیے آیا ہوں، میں اسٹیشنری لینے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں میں ایسے ہی مارکیٹ میں آیا ہوں، کوئی کام نہیں ہے، تو کوئی کیا کہے گا کہ بڑا عقل مند آدمی ہے یہ کہ بغیر مقصد کے کیا کر رہا ہے، یہ گھوم رہا ہے۔ جب انسان چھوٹا سے چھوٹا کام مقصد سے ہٹ کر نہیں کرتا ہے تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیوں اس دنیا میں آیا، اتنی بڑی دنیا میں آیا ہے اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے بے شمار فیسلٹی اس دنیا میں مہیا کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں آنے کا اس کا بھی کوئی مقصد ہوگا۔ بغیر مقصد کے تو وہ اس دنیا میں آ نہیں سکتا ہے۔ آج انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسے یہی نہیں معلوم ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا۔ 90% اسی % لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ دنیا میں کیوں آئے، انجوائے کرنے کے لیے، کھائیں گے پیئیں گے، موج مستی کریں گے اور اس دنیا سے چلے جائیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس دنیا میں انسان آیا اس لیے ہے کہ وہ اللہ نے جس مقصد کو لے کر دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو پورا کرے۔ بہرحال اس وقت سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی نظام تعلیم یا کوئی بھی ایجوکیشن سسٹم یا کوئی بھی لائف آف اسٹائل، لائف آف لیونگ، جو بھی کچھ اسے کہا جاوے، زندگی گزارنے کا جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے، ان تمام چیزوں میں ایک چیز انسان کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں ہر ایک انسان کا ایک ورلڈ ویو ہوتا ہے۔ ورلڈ ویو کا کیا مطلب ہے؟ ورلڈ ویو کا مطلب ہے نظریہ کائنات، کہ انسان اس کائنات کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اس دنیا کے بارے میں اس کے ذہن و دماغ میں کیا ہے۔ چاہے کوئی انسان مانے یا نہ مانے، لیکن اس کا ایک ورلڈ ویو ضرور ہوتا ہے، جس کو نظریہ کائنات یا یوں کہا جاتا ہے کہ جس کو یونیورسل ویو کہا جاتا ہے، وہ ہوتا ہی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایتھسٹ ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے ہیں، ان کا بھی کوئی نظریہ ہوتا ہے، ان کے ذہن میں بھی کوئی تھیوری ہوتی ہے۔ جیسے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کسی کو نہیں مانتے ہیں وہ یہ تو مانتے ہیں کہ سب کچھ آٹومیٹک ہو گیا، کسی نے بنایا نہیں، بغیر کسی کے بنائے بن گیا، تو یہ بھی ایک تھیوری ہے، یہ بھی ایک نظریہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے یہ معلوم ہوا کہ عقیدہ جس کو بلیف کہتے ہیں، یہ ہیومن اور انسان کے ساتھ ایک لازمی اور ضروری چیز ہے۔ بغیر نظریے کے، بغیر عقیدے کے، بغیر بلیف کے دنیا میں انسان زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقیدہ انسان کی ضرورت کیوں ہے؟ کیوں انسان بغیر عقیدے کے زندگی نہیں گزار سکتا؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک آدمی کشتی میں سوار ہو یا ہوائی جہاز میں بیٹھے یا گاڑی میں بیٹھے اور آپ اس سے سوال کریں کہ بھائی where are you going؟ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو اس کے پاس کوئی تو جواب ہوگا نا۔ کیا وہ یہ کہے گا کہ نہیں، کہیں نہیں جا رہا ہوں؟ 2 کلومیٹر، 5 کلومیٹر، یا کوئی سٹی کا نام یا کوئی ایسی جگہ ہوگی جس کے بارے میں وہ دماغ میں بٹھا کر بیٹھا ہوگا کہ یہاں سے مجھے دھلیا جانا ہے یا مجھے یہاں سے اورنگ آباد جانا ہے۔ اس کے بغیر تو انسان گاڑی پر بیٹھے گا نہیں۔ ایسے ہی اس دنیا میں جب انسان آیا ہے تو دنیا میں آنے والے انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی کی اس سواری میں بیٹھ کر اسے کہاں جانا ہے۔ زندگی کی سواری میں بیٹھ کر اسے کہاں جانا ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ مجھے کہیں نہیں جانا ہے تو انسان کیا کہے گا کہ بڑا بے وقوف آدمی ہے، جب تجھے کہیں جانا ہی نہیں ہے تو گاڑی میں بیٹھا کیوں، جہاز میں سوار کیوں ہوا؟ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی جگہ ہوگی یا کوئی نہ کوئی اسٹیشن ہوگا جہاں پر جا کر وہ رکے گا۔ ایسے ہی دنیا میں انسان آیا ہے، ایسے ہی انسان کا آخری اسٹیشن جو ہے وہ آخرت ہے۔ اس آخرت کی کامیابی کے لیے کہ انسان مثلاً ایک آدمی جا رہا ہے دھلیا، تو دھلیا ایسے ہی نہیں جائے گا، وہ دیکھے گا کہ اس کے رہنے کا، کھانے کا انتظام ہے کہ نہیں، ماحول ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انتظام نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے بہت ساری پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی۔ ایسے ہی آخرت انسان کا ٹھکانہ ہے اور اس ٹھکانے تک انسان پہنچتا ہے، وہاں اچھی طرح سے زندگی گزارے، اس کے لیے اسے تیاری کرنی ہوتی ہے۔ جیسے ایک آدمی یہاں سے بیٹھ کر دھلیا جا رہا ہے، اس کے جیب میں پیسہ نہیں ہے، تو کیا وہ دھلیا پہنچ سکتا ہے؟
अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि गवर्नमेंट ने फ्री सर्विस रखी है और कोई पैसा नहीं लगता है धुलिया जाने के लिए, तो ठीक है, बस मैं बैठकर, गाड़ी में बैठकर, जहाज में बैठकर धुलिया तो पहुंच गया, मगर धुलिया पहुंचने के बाद 2-4 दिन उसको रुकना है, क्या वो सुकून से रुक सकता है? नहीं, क्योंकि जब उसके पास कोई चीज नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो खाएगा कैसे, रहेगा कहाँ? कुछ नहीं तो यही काम करना पड़ेगा कि अल्लाह के नाम पे दे दो। उसको क्या करना पड़ेगा? भीख मांगना पड़ेगा। यहाँ नहीं तो वहां तैयारी करनी पड़ेगी। इसी तरीके से इंसान इस दुनिया में आया है। इंसान के अंदर कुछ सवालात होते हैं कि इस दुनिया में मैं आया हूँ, मैं कौन हूँ? ये इंसान का सबसे पहला सवाल होता है, हु एम आई? मैं कौन हूँ? मेरी हकीकत क्या है? मैं इस दुनिया में क्यों आया? क्यों? इसलिए कि अगर उसके जहन में ये सवाल नहीं आता है तो वो इंसान ही नहीं। बहुत सारे लोग ये कहेंगे ना कि हमारे जहन में तो ये सवाल कभी आया ही नहीं, मगर सवाल आता है। हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरत। हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम के साथ पैदा होता है। उसके जहन और दिमाग में अल्लाह ने इस्लाम को रचाया और बसाया है। अब सवाल पैदा होता है कि बड़े होने के बाद कोई काफिर होता है, कोई मुशरिक बनता है, कोई क्या होता है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़अबवाहु यहूदानहु व यमजिसानहु व यनसिराना। फिर घर का एनवायरनमेंट, घर का माहौल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसे मजूसी बना देता है, काफिर और मुशरिक बना देता है, उसे यहूदी और नसरानी बना देता है। इसलिए कि जब वो आंख खोलता है और धीरे धीरे चीजों को सीखता है, कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, अखरिजकुम मिन बितूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैआ, कि अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेट से पैदा किया, तुम जर्रा बराबर कोई चीज दुनिया में जानते नहीं थे, कोई इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास नहीं थी, कोई नॉलेज तुम्हारे पास नहीं थी, किसी किस्म की कोई मालूमात तुम्हारे पास नहीं थी। इंसान ही एक ऐसी मखलूक है जो दुनिया में आने के बाद सब कुछ सीखती है। वरना आप देखेंगे कि बकरी का बच्चा पैदा हुआ, 15 मिनट के बाद वो क्या करना शुरू करता है? चलना शुरू कर देता है। 1 घंटा के बाद दूध पीना भी शुरू कर देता है। किसी भी जानवर को आप उठाकर देखो, लेकिन इंसान जब माँ के पेट से निकलता है तो सिर्फ उसे रोना आता है। उसे सिर्फ क्या आता है? रोना आता है। सिर्फ रोता है वो, बाकी सारी चीज उसे सीखनी पड़ती है। भूख लगती है तो वो रोएगा, उसे दूध पिलाना सिखाना पड़ता है, उसे पकड़ना सिखाना पड़ता है, उसे चलना सिखाना पड़ता है, तो हर चीज उसे सिखाना पड़ता है। बगैर सिखाए उस दुनिया के अंदर वो कोई चीज सीखता नहीं। तो इंसान बगैर सिखाए कोई चीज नहीं सीखता है। तो आगे हम जानेंगे कि इंसान कहाँ से कौन सी चीज कितनी मिकदार में सीखे। तो सबसे पहले इंसान के जहन में ये सवाल आता है जब इसको अक्ल और समझ आती है कि मैं कौन हूँ। और जैसे ही उसके जहन में ये सवाल आता है तो फौरन इसके जहन में एक दूसरा सवाल आता है कि मैं क्यों इस दुनिया में आया? Why am I here? मैं क्यों इस दुनिया में आया? मैं खाने के लिए आया, मैं सोने के लिए आया, या मैं सैरो तफरी करने के लिए आया? मैं मोबाइल में फिल्में या स्पोर्ट्स या फिल्में या क्रिकेट देखने के लिए आया? क्यों आया? कोई तो आने का मकसद है मेरा। तो ये दूसरा सवाल जो इंसान के जहन में गर्दिश करता है। फिर उसके बाद इंसान के जहन में तीसरा सवाल आता है कि मेरा क्या होगा? What will happen to me? कि मेरे साथ क्या होगा? मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा, इस दुनिया से जाने के बाद मेरे साथ क्या होगा? क्या मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा? मैं दोबारा जिंदा नहीं होऊंगा? ऐसे ही रहेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का के काफिरों को इस बात की दावत दी कि भाई मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, मरने के बाद अल्लाह के यहाँ हिसाब देना है और फिर उसकी अच्छाई का अंजाम अच्छा और बुराई का अंजाम बुरा होगा, तो एक सरकश काफिर था, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। क्या लेकर आया? एक बुसीदा हड्डी लेकर आया, पुरानी हड्डी लेकर आया। कुरान करीम ने सूरह यासीन में उसका जिक्र किया है कि वो ऐसी हड्डी थी जो हाथ से मिले तो पाउडर बन जाए। उसने हाथ से मसला तो वो पाउडर बन गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने लगा, आइजा यहयल इज़ाम वही रमीम। उसको मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर यकीन नहीं था, तो कहता है क्या इंसान मरेगा, हड्डी बन जाएगा और इस तरह से पाउडर बन जाएगा तो अल्लाह उसे दोबारा जिंदा करेगा? कहा मेरी तो समझ में आता नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत करीमा नाजिल हुई कि ठीक है, नहीं समझ में आता है, जब बारी आएगी तब समझ में आ जाएगा, जब आंख बंद होगी। फसूफ तरी इजा कशफल गुबार के आदमी अपनी आखिरत से, अपनी मुस्तकबिल से, अपने फ्यूचर से बेनियाज होकर जिंदगी गुजारता है। बोले क्यों? अपनी तो बंदास है, जो होना होगा देखा जाएगा।
तो फारसी का शेर कहता है, फसूफ तरी इजा इनकशफ अल गुबार, अन करीब तो देखेगा, कब देखेगा? जब ये सारी चीजें तुम्हारे सामने से हट जाएंगी, आफिस तहत रजलक आम हिमार, कि तो जिस सवारी पर बैठा है वो घोड़ा है या गधा है। क्या मतलब? वो अपने आप को बहुत होशियार समझता था, तो क्या सही तौर पर आखिरत की सवारी पर सवार हुआ है या जहन्नम की सवारी पर सवार होकर जहन्नम का ठिकाना बना करके आया है? इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर इंसान जब दुनिया में आता है, उसकी एक सेट रिजर्व होती है जहन्नम में और एक सेट रिजर्व होती है जन्नत में। अगर वो अच्छे अकीदे के साथ, अच्छे अमाल के साथ, अच्छे अखलाक के साथ जिंदगी गुजार कर जाता है, तो उसकी जहन्नम वाली सेट कैंसिल हो जाती है और जन्नत वाली सेट उसके लिए कंफर्म हो जाती है कि भाई ये जन्नत वाला है। अगर वो अच्छे अमाल नहीं करता है, अच्छा इंसान नहीं है, अच्छे अकायद नहीं है, तो उसके लिए जन्नत वाली सेट कैंसिल हो जाती है और अल्लाह मेरी और आपकी और हम सब की हिफाजत फरमाए, जहन्नम वाली सेट उसके लिए कंफर्म हो जाती है कि भाई ये जहन्नमी आदमी है। तो इसलिए इंसान के लिए जरूरी है कि वो जाने। इंसान के जहन में एक तो ये 3 सवाल अपने बारे में, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं और मेरा क्या होगा। दूसरा सवाल इस इंसान के जहन में आता है जब वो आंख खोलता है, इसे सूरज दुखता है, इसे चांद दुखता है, इसे सितारे नजर आते हैं, इसे दरख्त नजर आते हैं, इसे तरह तरह की दुनिया की चीजें नजर आती हैं, तो वो फौरन सवाल करता है कि ये कायनात क्या है। जब इंसान आंख खोलता है तो उसे सूरज दुखता है, चांद दुखता है, दरख्त दुखता है, तो उसके जहन में फौरन दूसरा सवाल आता है, ये कायनात क्या है, ये यूनिवर्स क्या है, ये क्या चीज है, इसको क्यों और किसने बनाया, इसका अंजाम क्या होगा, और इस यूनिवर्स का ताल्लुक इंसान के साथ क्या है, इसका रिलेशन क्या है। ये सवालात इंसान के बारे में दूसरे नंबर पर आते हैं। तीसरे नंबर पर इंसान के जहन में सवाल आता है, मेरा माबूद, मेरा खालिक या मेरा क्रिएटर कौन है जिसने पैदा किया। ये 3 मेजर सवालात हैं, बड़े बड़े सवालात हैं जो हर इंसान के जहन के अंदर आते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि इतने बड़े बड़े सवालात के जवाबात इंसान को कहां से मिलेंगे, मज़कूरा सवालात के जवाबात कैसे हासिल होंगे और इंसान कहां से उनके जवाबात पाएगा। तो फरमाते हैं कि मज़कूरा सवालों के जवाब इसको हासिल होंगे इल्म से। कैसे हासिल होंगे? इल्म से। इसलिए कि अगर इसके पास इल्म नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इल्म के बगैर किसी भी सवाल का जवाब मिल सकता नहीं है। सवाल पैदा होता है कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज, इल्म के जराए क्या हैं, किन जराए से इंसान को इल्म हासिल होता है। तो इंसान को इल्म हासिल होता है 3 चीजों से, 3 तरह से इंसान को इल्म हासिल होता है। हवा से खमसा से, जिसको 5 सेंसेस कहते हैं, यानी देखने से, सुनने से, छूने से, गर्म है या ठंडा है इंसान को पता चलता है। इसी तरीके से चखने से, मीठा है या खटा है, और सूंघने से, खुशबू है या बदबू है। ये इंसान के सोर्स ऑफ नॉलेज हैं जिसके जरिए से इंसान को इल्म हासिल होता है। दूसरे नंबर पर इंसान को इल्म हासिल होता है अकल से। क्या मतलब? कि बहुत सारी चीजें इंसान पूछता है और सोचकर उसे समझ में आ जाती हैं। जैसे आप कहीं गाड़ी में ड्राइविंग कर रहे हैं, आपने देखा कि गाड़ियां खड़ी हो गईं, आप फौरन कहां देखेंगे? सिग्नल की तरफ देखेंगे। सिग्नल क्या है? आपने देखा कि लाल लाइट जल रही है, तो आपकी अकल फौरन क्या कहेगी कि भाई अच्छा, लाल लाइट का मतलब ये है कि स्टॉप क्या करना है, रुकना है। तो आपने ये कैसे समझा कि लाल लाइट का मतलब स्टॉप है? इसलिए कि इंसान ने जो सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम में ये बनाया है कि भाई लाल लाइट का मतलब स्टॉप और हरी लाइट है, तो उसका मतलब क्या है? स्टॉप नहीं है, रुकना नहीं है, आपको जाना है। तो जैसे ही वो हरी होगी वो चलना शुरू करेगा। ये चीजें इंसान ने किससे सीखे? अपनी अकल से। ऐसे बहुत सारे मसाइल इंसान अपनी अकल से हल करता है। और तीसरे नंबर पर जो है वो खबर और वही। क्या मतलब? कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ना तो इंसान को 5 सेंसेस से हासिल हो सकती हैं, ना इंसान को अपनी अकल से समझ में आती हैं, बल्कि वो चीज इंसान को उसी वक्त समझ में आएगी जबकि इंसान के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत वही के जरिए से खुद बयान करे। जब अल्लाह वही के जरिए से खुद बयान करे तब जाकर वो इंसान को समझ में आएगी। मसलन जन्नत और जहन्नम इंसान को कब समझ में आई? जब कुरान और हदीस में उसका तज़किरा आया। आज बहुत कम हैं ऐसे लोग जो अपने आप को एक्स मुसलमान कहते हैं, उसमें भी धोखा होता है। बहुत सारे तो मुसलमान ही नहीं होते और अपने आप को एक्स मुसलमान कहते हैं, और कुछ होते भी ऐसे हैं। चूंकि उन्होंने दीन का इल्म हासिल नहीं किया, इसलिए वो इस्लाम के खिलाफ किए गए प्रोपेगंडे से मुतासिर हो गए और मुतासिर होकर तरह तरह की बातें करते हैं कि जन्नत और जहन्नम को किसने देखा,
हमारी मीडिया ने भी कुछ दिनों पहले हूर का मजाक उड़ाया था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं, मगर इंसान को ये समझना चाहिए हम मुसलमान हैं। जब अल्लाह की किताब में जिस चीज का जिक्र है उस चीज को मानना मेरे और आपके लिए फर्ज ऐन है। अगर हम इसका मजाक उड़ाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने ईमान को बर्बाद कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब अल्लाह ने कह दिया है तो है, चाहे वो हमें नजर न भी आए। अब जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं दुनिया के अंदर जिसको हर इंसान नहीं देख सकता है। आपने सुना बैक्टीरिया, कि इंसान के बदन में बैक्टीरिया होता है, ये जो फिजा है उसमें बैक्टीरियाज होते हैं। तो क्या मैंने और आपने देखे हैं? कभी नहीं देखे। तो हम किसकी बात मानते हैं यहाँ पर कि भाई साइंसदानों ने कहा। तो एक साइंसदान अगर कहे तो बगैर देखे आप मान लेते हैं, और आपका क्रिएटर और खालिक कहे तो आप नहीं मानते। तो आपसे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है कि आपने एक इंसान की बात मान ली, और वही बात अगर अल्लाह कहते हैं कि ये चीजें होने वाली हैं, कब्र में ये होगा, पुल सिरात होगा, मीजान होगा, तो फिर इंसान उसको हंसी और मजाक बनाता है। लेकिन दीन की किसी मामूली चीज का मजाक उड़ाना इंसान को इस्लाम से बाहर कर देता है। एक तो है इंसान किसी चीज को माने और उस पर अमल न करे, और दूसरा है इंसान इस चीज का मजाक उड़ाए। आप पर नमाज फर्ज है, आपको पढ़ना चाहिए, आप नहीं पढ़ते हैं तो गुनहगार हैं। लेकिन आप ये कहें कि नमाज क्या चीज है, क्या जरूरत है नमाज की, तो अब आप मुसलमान बाकी न रहे, इसलिए कि आपने दीन का मजाक उड़ाया। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, कोई ज़कात का इनकार करता है, कोई हज का इनकार करता है, तो ऐसी बुनियादी चीज का इनकार इंसान को इस्लाम से दूर कर देता है। अगर कोई कहे कि मुसलमान, मोमिन, इंसान ये सब क्या है, असल तो इंसानियत है। आजकल इस तरह से भी लोगों को गुमराह करते हैं। तो आप किसी से सवाल करें कि आप किसी कंट्री में रहते हैं, इस कंट्री में अगर आप इस कंट्री के खिलाफ कोई बात कहीं या करें तो आपको क्या कहा जाता है? देशद्रोही, कि आप गद्दार हैं। इस कायनात को अल्लाह ने पैदा किया, पैदा करने वाले के बताए हुए कानून और दस्तूर के खिलाफ अगर आप कुछ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप मुजरिम ठहरेंगे या नहीं ठहरेंगे? ठहरेंगे। एक आदमी है, किसी को मार दे, उसके बाद उसे कोई कहे कि यार तो बड़ा जालिम आदमी है, और वो कहे कि क्या तुम मुझे जालिम कहते हो? ओ भाई, तुमने किसी को मारा, तुमने जुल्म किया, तो जाहिर सी बात है कि तुम जालिम हो। मुजरिम को मुजरिम नहीं कहेंगे तो क्या करेंगे? तो ऐसे ही जो अल्लाह का इनकार करे उसे काफिर कहा जाता है। एक तो बात ये कि अल्लाह का इनकार करना और चीजों का मजाक उड़ाना, उसके बाद उन्हें काफिर कहें तो उन्हें बुरा लगता है कि हमको मुशरिक नहीं कहने का। तुम अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं मानते तो तुम मुसलमान कैसे हो सकते हो? तो इंसान को जो इल्म हासिल होता है उसके तीन जराए हैं। या तो इंसान को इल्म हासिल होगा हवासे खमसा से, या अकल से, या खबर और वही के जरिए से। ये इंसान के इल्म हासिल करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हवास में भी सबसे ज्यादा आंख और कान, दूसरे नंबर पर अकल, और तीसरे नंबर पर खबर और वही। पहले जमाने में रेडियो था, तो रेडियो में किसी ने रेडियो स्टेशन से ये कह दिया कि भाई अमेरिका के अंदर जलजला आया और इतने लोग मर गए, तो आप इसकी खबर मानते हैं कि नहीं? मानते हैं ना? मतलब एक इंसान दूसरी जगह की खबर बताए, आपने उसे देखा नहीं, इसके बावजूद इसे मान लेते हैं। जैसे चंद्रयान पहुंचा चांद के ऊपर, तो हमने मान लिया ना कि भाई वहां पर पहुंच गया है, उसको मानते हैं बगैर देखे हुए। तो जाहिर सी बात है कि अगर अल्लाह भी किसी चीज की खबर दे तो आपको बदरजा औलीज मानना चाहिए। इसीलिए बयान करते हैं कि कुव्वत के एतबार से जो तरतीब है उसमें लोग देखकर और सुनकर जो हासिल होता है समझते हैं कि यही असल है। इसीलिए एक एथेइस्ट ने 3 घंटे तक लेक्चर दिया कि अल्लाह नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह नजर नहीं आया। एक प्रोफेसर वहां बैठे हुए थे, उनके साथ एक 8 साल का मुसलमान बच्चा भी था। जब लेक्चर खत्म हुआ तो उस बच्चे ने सवाल किया, सर मेरा एक सवाल है। इसने पूछा कि सर अगर आपके सर में दर्द हो और आप कहें कि मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मैं ये कैसे मानूंगा? वो कहता है कि इसलिए कि मैं कह रहा हूँ। बच्चा कहता है कि अभी आपने कहा कि जो चीज नजर ना आए उसके होने का यकीन नहीं कर सकते। आपका दर्द मुझे नहीं दुख रहा है तो मैं कैसे मानूं? आप दर्द दिखा सकते हैं, आदमी दिखा नहीं सकता, लेकिन इसे महसूस हो रहा है। सहाबा बैठे हुए थे, 14वीं रात का चांद नजर आ रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, हल तरोन हाजल बद्र, क्या तुम इस चांद को देख रहे हो? सहाबा ने कहा, जी हाँ। फरमाया, वस्तरून रब्बकुम कमा तरोन हाजल बद्र, कि तुम अल्लाह को वैसे ही देखोगे जैसे तुम इस चांद को देख रहे हो। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया और कुरान ने ऐलान किया
कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। हमारा मानना यही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कह दिया वो सच है। अल्लाह नजर नहीं आ रहा है मगर जरूर बजरूर दुखेगा अगर हमें जन्नत नसीब हो जाए। तो अब फरमाते हैं कि वही जो है वो सबसे मजबूत जरिए इल्म है, दूसरे नंबर पर अकल और तीसरे नंबर पर हवास आते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हवास की एक लिमिट है। आप आंख से देखते हैं लेकिन आंख के देखने की एक लिमिट है, इससे ज्यादा आगे आपको नहीं दिखेगा। जैसे हवाई जहाज कितना बड़ा होता है लेकिन जब ऊपर चला जाता है तो छोटा नजर आता है और बहुत ऊपर चला जाए तो नजर भी नहीं आता। इसका मतलब है कि अल्लाह ने एक लिमिटेशन रखा है। ऐसे ही सुनने की भी एक लिमिट है कि एक खास हद तक आवाज आती है, उससे ज्यादा नहीं आती। ये पांचों चीजें लिमिटेड है। जहां उनकी लिमिट खत्म होती है वहां से अकल शुरू होती है और जहां अकल की लिमिट खत्म होती है वहां से वही शुरू होती है। जहां अकल कहती है कि अब मुझे कुछ समझ में आता नहीं तो वहां से वही शुरू होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान वही के जरिए नाजिल हुआ, इसीलिए सबसे स्ट्रॉन्ग जरिया इल्म वही है, फिर अकल, फिर हवासे खमसा। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारी चीजें इंसान को नजर आती हैं और बहुत सारी नजर नहीं आती। जो नजर आती हैं उन्हें आलमी शहादत, ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड कहते हैं। जैसे हम स्टेज देख रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। दूसरा होता है आलमे गैब, नॉन ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड, यानी जो नजर ना आए। कुरान में अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि मोमिन वो हैं जो गैब पर ईमान रखें। ईमान 6 चीजों पर है: अल्लाह को मानना, मलाइका को मानना, किताबों और रसूलों को मानना, आखिरत के दिन को मानना और तकदीर को मानना। ये सब आलमे गैब है जो हमें नजर नहीं आता, मगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया तो मानना है। जैसे आलमे शहादत में हम देखते हैं कि दाने से पौधा आग रहा है, हमने दाना डाला और पौधा आग गया, लेकिन आलमे गैब ये है कि उसे आगाया किसने। अगर आपसे कोई पूछे कि ये स्क्रीन किसने बनाई और आप कहें कि ये दीवार पर खुद ब खुद बन गई तो लोग आपको पागल कहेंगे। जब ये एक छोटी सी चीज खुद नहीं बन सकती तो ये पौधे, दरख्त और दुनिया बगैर बनाने वाले के कैसे वजूद में आ सकती है। सूरज जहां पर है, अगर वो एक बाल बराबर भी आगे होता तो इतनी गर्मी होती कि इंसान जिंदा न रह सकता। एक किताब में मैंने पढ़ा कि कायनात का खुद ब खुद बनना ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि कागज रखे थे, अचानक धमाका हुआ और एक डिक्शनरी बनकर तैयार हो गई। क्या कोई मानेगा? नहीं, क्योंकि डिक्शनरी के एक एक लफ्ज और माने को सेट करना पड़ता है। जब डिक्शनरी खुद नहीं बन सकती तो इतनी बड़ी कायनात बगैर खालिक के कैसे बन सकती है। अल्लाह बादल को हुक्म देता है कि कहाँ कितना पानी बरसाना है। इंसान की फितरत में गैब की जुस्तजू है। इस्लाम ने पूरा मदार गैब पर क्यों रखा? क्योंकि ये इंसान की नेचर में है। जैसे इंसान अंडा देखकर उसे कच्चा नहीं खाता बल्कि उस पर तजर्बा करता है कि उसे पकाने से या मसाला डालने से क्या बनेगा। इसी को गैब की जुस्तजू कहते हैं और उसी ने इंसान को तरक्की दी। इंसान और बंदर में फर्क यही है कि बंदर के हाथ पांव इंसान जैसे हैं, लेकिन किसी बंदर ने 100 मंजिला इमारत नहीं बनाई, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अकल दी है कि वो चीजों की गहराई डीप में जाए। शेर या हाथी हजारों साल से वही एक जैसे ग़िज़ा खा रहे हैं, लेकिन इंसान एक चिकन से चिकन 65 टक्का मसाला और बिरयानी जैसी हजारों चीजें बना लेता है, क्योंकि वो दिमाग दौड़ाता है कि ऐसा करके देखो, वैसा करके देखो। यही गैब की जुस्तजू इंसान को तरक्की की तरफ ले जाती है, इसीलिए अल्लाह ने ईमान का मदार गैब पर रखा है। अल्लाह फरमाता है कि इंसान दुनिया में चाहता है कि जो सोचे वो हो जाए, मगर दुनिया में ऐसा नहीं होगा, उसके लिए जन्नत में जाना पड़ेगा। वहां जो सोचोगे वो हो जाएगा। जैसे सेब खाते हुए अंगूर का ख्याल आएगा तो अंगूर का मजा आ जाएगा। अल्लाह की जन्नत बहुत कीमती है, इसके लिए ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ती है। इंसान लैब में जाकर खून के सेल्स और डी नेशनल असेंबली टेस्ट के जरिए हकीकत मालूम करता है। ये सब गैब की जुस्तजू है। अब सवाल है कि इंसान की हकीकत क्या है। फलसफा आज तक हैरान है और डेफिनेशन नहीं कर सका। 3000 साल में बड़े बड़े फलसफी गुजरे, मगर इंसान की हकीकत बयान न कर सके। इस्लाम की नजर में इंसान की हकीकत अल अब्दुल मोमिन,
मोमिन बंदा है, यानी वो जो अपने मकसद हयात को समझ ले और अल्लाह के साथ जड़कर जिंदगी गुजारे। जो ये नहीं जानता कि वो क्यों आया और उसका अंजाम क्या होगा, वो कुरान के मुताबिक जानवरों से भी गया गुजरे हैं। हकीकी इंसान वही है जो वही की रोशनी में सवालात के जवाब जानता हो। इंसान को क्या जानना जरूरी है? फलसफा कहता है हर चीज की हकीकत जानो, मगर वो खुद अपनी हकीकत न जान सका। साइंस कहती है इंसान सिर्फ इल्म और मालूमात, डेटा के लिए आया है। आज की दुनिया डेटा की है, इसलिए लोग डेटा चुराते हैं। इस्लाम कहता है इंसान हक और बातिल की मार्फत के लिए आया है। फलसफा और साइंस मुकम्मल रहनुमाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बुनियाद महदूद अकल और तजर्बे पर है। सिर्फ वहीयुल हीज कुरान और हदीस ही मुकम्मल रहनुमाई कर सकती है, क्योंकि अल्लाह के इल्म की कोई लिमिट नहीं। इंसान तीन चीजों का मजमुआ है: अकल, जिस्म और रूह। अकल की ग़िज़ा वही का इल्म है, जिस्म की ग़िज़ा अच्छे आमाल और इखलाक हैं, और रूह का सुकून अल्लाह के जिक्र और मार्फत में है। सोशल मीडिया से सुकून नहीं मिलता, बल्कि नींद उड़ जाती है। सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है। जब इंसान के सामने ये पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है कि वो क्यों आया है और उसे कहाँ जाना है, तब वो सही जिंदगी गुजार सकता है। ये चंद बुनियादी चीजें थीं जिनका जानना जरूरी था। उम्मीद है कि आपके जहन में ये बात आई होगी। जज़ाकल्लाह।